in this chapter we are going to study something new. What is that? This thing we study in class 11th only, and the basic is the motion in two dimension. That means your motion will not only in one direction, it will be in one direction as well as two direction. That means it will be in x axis as well as y axis. And the very important tool to study this chapter is the vectors. Definitely this chapter is based on vectors. So first we will study vectors, and vector is a tool, it is a mathematical tool to express any vector quantity. तो क्लास 9th में हमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया था द क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, दिस इज स्केलर क्वांटिटीज. तो उसका मतलब क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता दिया. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, डिस्टेंस इज स्केलर. So why they are different? Why we are always classifying the quantities as scalar and vector? So this is very important because स्केलर क्वांटिटीज को जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल टेक द एल्जेब्रिक सम. बट अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करते हो ना तो उसको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते. यू विल हैव टू यूज अ डिफरेंट मैथमेटिकल टूल, दैट इज वेक्टर्स. वी विल स्टडी दिस टॉपिक वेक्टर्स इन दिस वेरी चैप्टर इन द मोशन इन टू डायमेंशन. सो वेक्टर्स इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रॉब्लम क्या है कि जो वेक्टर्स की कंप्लीट स्टडी है दैट इज इन मैथमेटिक्स एंड इट इज इन क्लास 12th. So here we will study just basic vectors so that students can understand the physics. So we are studying vectors at the physics point of view. Okay, so without any delay I will start my topic, that is motion in plane, right? So in this topic first we will start that the introduction part. So we must know one thing, that what is motion in one dimension and what is motion in two dimension. As I have explained that the motion in one dimension, for example, the object is just moving in a straight line. You are going from A point to B point, just like from your home to school you are going. You are anywhere, you are going in a straight path, or you have just thrown the ball vertically upward, or you are just thrown the ball vertically downward, or you just left it, or you just dropped the ball. So this was the motion in one dimension. But here something is very very different. In this you will not throw the ball like this, or not you will drop the ball, or you will not throw the ball like this. And in this case we will throw the ball just like the cricket. So how we throw the ball in cricket? Just like a projectile. दैट मीन्स हम अपने बॉल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं. इफ आई एम जस्ट थ्रोइंग माई बॉल लाइक दिस, इट विल टेक अ पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री इज जस्ट अ पाथ द ऑब्जेक्ट टेक्स, राइट? तो एक ट्रेजेक्ट्री ऑक्यूपाई कर लेती है. तो अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे जो मोशन है, दिस मोशन, और यू कैन से द लोकस. लोकस मीन्स पाथ. लोकस एंड ट्रेजेक्ट्री सेम थिंग. तो लोकस जो इसका जो पाथ आ रहा है वो कैसा है? इट इज नॉट अ स्ट्रेट पाथ, इट इज अ प्रोजेक्टाइल. तो इसको स्टडी करने के लिए हमें एक टूल चाहिए, बिकॉज हम इसमें प्लस माइनस एक कन्वेंशन लेके, क्योंकि अभी तक क्या करते थे ना, लाइक अगर तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और अगर इस पे 3 न्यूटन और लगा दो इसी डायरेक्शन में, सो द कंप्लीट फोर्स इन दिस डायरेक्शन विल बिकम 5 + 3, दैट विल बी 8 न्यूटन. और अगर तुम दोनों को अपोजिट लगा दोगे 5 हियर एंड 3 हियर, तो इट विल बी रिजल्टेंट जो इसका आएगा वो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल बी 2 न्यूटन. 5 - 3 will become 2 Newton because the straight line path was there. But here the velocity is not horizontal. तो यहाँ पे आप किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो. तो ये कभी सोचा है कि ये ऐसा ही शेप क्यों लेता है? Why it is going like this? क्या यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है? यस, तो फोर्स तो यहाँ पे भी लग रहा था, यहाँ पे भी एक ही फोर्स लग रहा था. कौन सा? When I was throwing the ball vertically upward, in that case the only force that was acting, that was gravity. तो यहाँ पे भी केवल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है. एंड इन दिस केस ऑल्सो देयर इज ओनली वन फोर्स. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, एयर रेजिस्टेंस को हम उसमें भी नेग्लेक्ट ही करते हैं, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस दैट इज वेरी माइन्यूट एंड 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, राइट? तो अब देखते हैं यहाँ दोनों ही केसेस में अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, देन व्हाई द बॉल इज टेकिंग दिस लोकस एंड व्हाई द बॉल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. The reason is this, if you see that कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर, तो when we project an object at a certain angle, तो we will have to resolve that thing in 2 direction. तो हमें
देखो फॉर द कन्वीनियंस वी रिजॉल्व कहते नहीं, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो मतलब सिंप्लीफाई कर लो। तो इफ यू आर रिजॉल्विंग